Good morning, students. I am Dr. Nilesh Sawant, and today we are again back with the same topic, that is the cell, the unit of life. And today we will be taking the remaining organelles. So, in the previous three lectures, we have studied about the introduction, then we have seen about the prokaryotic cell, then we have seen about the eukaryotic cell, and now we are studying about the organelles. Now, in today's lecture we will be covering these 4 to 5 topics. These are the cell organelles. ठीक है. So जो next है, लास्ट लेक्चर में हमने सेल वॉल उसके हमने बारे में देख लिया था, तो उसके भी हमने पॉइंट्स कवर अप किए हैं. नाउ टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट सेल मेम्ब्रेन. उसी को ही हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज दी plasma membrane, or you can simply call it as plasma lemma. Lemma means also membrane, so scientifically we call that so plasma lemma. So this is plasma membrane. Now देखा जाए तो initially it was considered कि it is just a single layer, and that was the unilayer model of cell membrane was given by Robertson. ठीक है. So he was of this opinion कि this is just a single membrane layer. Then after the discovery of what you can say the microscope, electron microscope, then Daniel and Davison proposed the sandwich model. Sandwich model means what? They proposed कि it's a 3 layer, that is lipid, then there is a protein layer, and again there is a lipid layer. So like a sandwich between two breads, जो अंदर का मैटर होता है, वैसे ही दो लिपिड लेयर्स के बीच में प्रोटीन होता है, ऐसा मानना था ऑफ डैनियल एंड डेविसन. बट the true model of the plasma membrane was actually given by Singer and Nicholson. ठीक है. So I think so around about in 1959 or 1960s के करीब Singer and Nicholson ने ये fluid mosaic model of plasma membrane ये उन्होंने दिया था. Now in this fluid mosaic model, this is what is considered as, it is made up of lipid bilayer. It is made up of lipid bilayer. You can see 2 layers of lipids which are in between, what you can say, embedded with proteins. So lipid bilayer embedded with proteins. So this was the fluid mosaic model. Now in this fluid mosaic model, मतलब actually different cells and the cell membranes may vary a bit, but जो उन्होंने एक आरबीसी के ऊपर इनिशियली आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन जब उन्होंने देखा, so what they found was it consisted of 52% proteins chemical composition में and 40% lipids, and remaining थोड़ा variable है. जैसे humans में even you can find some cholesterol molecules which bind that lipid molecule. You also find some carbohydrates. तो जो remaining I think so 8% है, उसमें carbohydrates, cholesterol derivatives वगैरह भी इसमें मदद करते हैं to form this fluid mosaic model or the Singer-Nicholson model of plasma membrane. तो we'll just see this कि ये Singer-Nicholson model कहता क्या है. Now this Singer-Nicholson model initially says that it is made up of a lipid bilayer. So here you can see the outside of cell, this is the inner part of the cell, and here you can see this is one layer and this is the another layer. So here 2 rows of lipid, hence we call it as a lipid bilayer. And lipid bilayer may, if you see a lipid molecule over there, which I have marked it over here, it has a head and a double tail. And the head is hydrophilic, मतलब water soluble, and the tails are generally hydrophobic.
hydro is water, phobic means to hate. मतलब simply these are water repellents, ठीक है, so they don't dissolve in water. and इसलिए तुम देखो लिपिड बाइलेयर कैसे होता है, the heads are directed toward the respective ends, means outside को head है और inside में head point कर रहा है, and both the tails are pointing towards the center. So this is creating that barrier, ये water insoluble region हो जाएगा and इसलिए कोई भी चीज directly enter नहीं कर पाएगी, ठीक है. तो ये थोड़ा 3 डायमेंशन दिखाने के लिए सरफेस दिखाया मैंने. So these are again lipid molecules, ठीक है. So lipid bilayer इस तरीके से होता है. The head region is hydrophilic, मतलब water soluble, and the tail regions are hydrophobic, मतलब which hates water, which are not soluble in water. Now some substances can easily pass through this, like say gases हो सकता है, water हो सकता है, but water भी तुम जानते हो it is a polar thing. These are non-polar ones, ठीक है. So some gases, these can they can easily pass through this membrane. Now for the entry and exit of the various what you can say substances, they are these types of proteins. So here in the plasma membrane basically you will get 2 types of proteins. One is the integral proteins that we call, and दूसरे होते हैं peripheral proteins. Integral means which are, we can also call them as tunnel proteins, which are seen passing through and through by the lipid bilayer. तो ये देख सकते हो टनल जैसे, या जो दोनों लेयर के आर पार जो कनेक्शन कर रहे हैं, या which is communicating the inside of the cell to the outside of the cell, हम उन्हें इंटीग्रल या टनल प्रोटीन्स कहते हैं. पर कुछ पेरिफेरी, फिर या तो वो बाहर की तरफ होंगे पूरे या अंदर की तरफ होंगे. So depending on their position, they are further classified as extrinsic proteins and intrinsic proteins. तो ये क्या काम करते हैं? They act like receptors. For say various hormones and उनके लिए. So these are some of the tunnel proteins which are necessary for in entry and exit of you can say ions, minerals, फिर glucose, मतलब amino acids, fatty acids, glycerol. So अलग अलग जैसे सोडियम पोटेशियम चैनल्स होते हैं. So this might be those कि जो सोडियम और पोटेशियम मतलब डिफरेंट हो गए. So this suppose this is a sodium channel, so it will allow the entry of sodium from outside of the cell and to the inside, so on. So ये सारे receptors जैसे generally काम करते हैं. So integral proteins का मतलब समझा है, the proteins which pass through and through the lipid bilayer are integral, and periphery which are on either sides, either completely outside or they are completely inside of the cell facing. So these are the basically 2 types of proteins that we find within the cell membrane. इसी रीजन से देखो जो फर्स्ट लाइन आती है रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मूवमेंट्स चलती रहती है. मीन्स there's continuously movement going on in and out of the cell, means something is transported from outside to inside through these tunnel proteins, some might be thrown out of the cell through this tunnel protein. So it's a very lively area, it's a continuously busy area of a cell जो continuously outside environment को react करते रहता है, hence इसको बोला गया है living membrane. दूसरा it is known as selectively permeable membrane. नाम जैसे मैंने बताया कि suppose if this is sodium channel, तो obviously it will allow the entry of only sodium. So ऐसे करके पूरे सेल भर में, so if I say this is a cell, तो ऐसे सेल भर में बहुत सारे ऐसे टनल प्रोटीन्स होते हैं which run through and through, and हर एक का डिपार्टमेंट अलग है. Say this is for glucose entry, this is for sodium potassium entry, so on. So जो different substances है depending on their pore size, ये प्रोटीन का pore size, वो साइज से छोटी चीजें जो भी है वो उससे एंटर करेगी, ठीक है. So this is how generally this tunnel proteins work. अब ये जो substances का जो exchange है वो कैसे होता है? अब ये substances का जो exchange होता है, so I'm rubbing this. So substances का जो exchange होता है उसके लिए काफी केमिस्ट्री के प्रोसेसेस काम में आते हैं जो तुमने शायद पढ़े होंगे. तो मैं एक छोटा सा उनके बारे में बता रहा हूँ. से जो सॉलिड्स हैं, गैसेस हैं, they can be transported
बाय डिफ्यूजन। तो व्हाट इज डिफ्यूजन? तो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस बाय विच सॉलिड लिक्विड गैसेस विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। सबने देखा होगा, महसूस किया होगा रादर, सपोज अगर मैंने इस कमरे में अगरबत्ती जलाई है एंड ऑब्वियसली उसका फ्रेग्रेंस अगर नीचे कोई कमरा है तो वहां तक भी पहुंच जाएगी, ठीक है। अभी ऑब्वियसली मैं क्या अगरबत्ती लेके नीचे नहीं गया था, सो होता क्या है, द फ्रेग्रेंस और जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड थे एंड दे ट्राई टू डिस्पर्स टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। वैसे ही तो अगर कोई सब्सटेंस है जो हायर कॉन्सेंट्रेशन, जैसे गैसेस हो गए, एग्जांपल ले लो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वैसा, तो सेल के अंदर CO2 ज्यादा होता है, सेल के बाहर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा, सो ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो, whereas CO2 will diffuse from high concentration to low, so हम इसे कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। सो इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करता है एंड देयर इज नो नेसेसरी नीड फॉर एनी एनर्जी। सिमिलरली कुछ कुछ चीजों का, से कुछ सॉलिड्स है, उनके डिफ्यूजन के लिए एनर्जी नहीं लगती। जैसे अभी एग्जांपल है ये सोडियम चैनल है, नॉर्मली होता क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा होता है, अंदर सोडियम कम होता है। नॉर्मली हर सेल के बाहर का एनवायरनमेंट ऐसा ही होता है, बाहर वाले साइड में सोडियम ज्यादा, पोटेशियम कम, एंड जनरली अंदर पोटेशियम ज्यादा, सोडियम कम, ठीक है। सो तुम देख सकते हो हायर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है आउटसाइड ऑफ सोडियम एंड लोअर यहाँ है, उल्टा हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम यहाँ है, वहां लोअर है। सो यहाँ पे भी डिफ्यूजन होता है, बट दिस डिफ्यूजन मतलब समझ सकते हो, दिस इज नॉट डन विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ एनी एनर्जी, पर दे रिक्वायर सम कैरियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टू पास थ्रू इट, टू पास थ्रू दैट लिपिड बाइलेयर, ये मॉलिक्यूल्स के जरिए बाहर जा रहे हैं, सो हम इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। एनर्जी नहीं है बट उसको मदद करने के लिए कोई कैरियर मॉलिक्यूल्स जब होते हैं तो हम उसे कहते हैं फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन, ठीक है। मतलब दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन कैरियर मॉलिक्यूल्स, जनरली दीज आर प्रोटीन्स, ठीक है, दे आर जनरली कैरियर प्रोटीन्स, दे माइट बी ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, तो डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, वो एक है। स्पेशली पानी के मामले में हम इसी डिफ्यूजन को बोलेंगे ऑस्मोसिस। सो व्हेनेवर देयर इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो, फिर वो कहीं पे भी हो सकता है, बाहर पानी ज्यादा अंदर कम, या अंदर ज्यादा बाहर कम हो सकता है। सो पानी जाएगा उस रीजन से जहां पे पानी हायर कॉन्सेंट्रेशन में, एंड इट विल ट्रैवल टू द अदर रीजन वेयर देयर इज एट लो कॉन्सेंट्रेशन। तो पानी से रिलेटेड मूवमेंट को हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीजें मगर ऐसी भी होती है जिसे हम कहते हैं विच आर ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली, तो इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली एटीपी इज रिक्वायर्ड, और ये तभी लगेगा जब हम कुछ अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहे हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप होता है, न्यूरॉन्स वगैरह चैप्टर में हम पढ़ेंगे, नर्वस कोऑर्डिनेशन वगैरह में, कि वहां पे सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप्स क्या होते हैं, ये एक्टिवली ये एटीपी का इस्तेमाल करके अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करते हैं। मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में लेके आने को हम उसे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अगर ये करने में भी कुछ कैरियर प्रोटीन्स लग रहे हैं तो हम उसे फैसिलिटेटिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। फैसिलिटेटिव मतलब क्या, कुछ मदद करने वाले हैं, एंड एक्टिव वो एटीपी की मदद से, ठीक है। तो ये इन तरीकों से, ठीक है, दैट इज डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फैसिलिटेटिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज फैसिलिटेटिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इन अलग अलग मीडियम से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है चीजों को कंटिन्यूअसली अंदर बाहर कर रहा होता है, इसलिए हम इसे लिविंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इन कारणों से, ठीक है, क्योंकि वो जो चाहेगा उन चीजों को अंदर ले सकता है, जिन चीजों को उसे नहीं चाहिए उसे वो क्या कर सकता है, बाहर कर सकता है। होप सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये टॉपिक समझा है। विल जस्ट रिकैप अबाउट इट्स फंक्शन। तो सबसे फर्स्ट
again it is the outer membrane or the limiting membrane in case of animal cell. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, तो ये इकलौता आउटर मेम्ब्रेन है जो सेल के आउटसाइड एनवायरनमेंट को इनसाइड एनवायरनमेंट से अलग कर रहा है. दूसरा ऑब्वियसली इट विल गिव शेप टू द सेल, इट विल गिव शेप टू द सेल. तीसरा it is selectively permeable, so it allows certain entry of certain substance and exit of certain substance through these different processes. So ये सारे processes वो carry out करता है, ठीक है. And obviously it acts as a barrier जो हमने पढ़ाई था. So these are some of the functions which are done by the plasma membrane. Hope so सबको समझा होगा. So we are done with this, that is the plasma membrane. So what are the points to take away? अगर उसके structure related बोलो तो 3 structure थे. Unilaminar model which was given by Robertson, then sandwich model जिसे हम कहते हैं वो Daniel and Davison, and Singer-Nicholson model जो अपना famous fluid mosaic model है. इसको हम quasi fluid membrane भी जैसे बोलते हैं because ये continuously move करते थे. These proteins move on the, or you can say the plasma membrane. जो सरफेस प्रोटीन्स है वो अपनी जगह बदल सकते हैं, इसलिए हम उन्हें क्वाजी फ्लूइड मेम्ब्रेन ऐसा, बिकॉज उसमें थोड़ी हद तक फ्लूइडिटी मींस दिस मेम्ब्रेन कैन float, means it can circulate over there in its position. So it can, the proteins can change their position in the lipid bilayer, hence we call it as quasi fluid, ठीक है, membrane. तो ये था उसका इंट्रोडक्शन. बाकी लेयर्स वगैरह हमने ऑलरेडी कवर कर लिए है. सो यहाँ पे अपना होता है खत्म सेल मेम्ब्रेन. सो नेक्स्ट ऑर्गेनेली के पास जाते हैं. नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो है, हम ये जो मैंने लिखे हुए हैं हम इसे बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब क्या? सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे होते हैं which are membrane bound और वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं मतलब मिलजुल के काम करते हैं, इसलिए हम उन्हें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं. तो सम ऑफ द ऑर्गेनेलीज ऑब्वियसली ये मेम्ब्रेनस ही होंगे, एंड तुम्हें पता है ज्यादातर ऑर्गेनेलीज अपने डबल मेम्ब्रेन है. सो जो ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है, जो ये इनका फंक्शन कैरी आउट करते हैं, ये मिलजुल के करते हैं, कोऑर्डिनेटेड करते हैं. सो इसलिए हम उन्हें एक टोटल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हम लोग पकड़ते हैं, जो कि ये 4 है: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. रादर वैक्यूल्स इन्हीं का डेरिवेटिव है. सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें हम जो फर्स्ट पढ़ रहे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ जस्ट हैव अ लुक अवे. मैं थोड़ा 2 डायमेंशनल ड्रॉ कर रहा हूँ. ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सपोज करो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर पोर है. सो होता क्या है, इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कुछ फोल्ड्स निकलते हैं. These are those folded structures. So ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये भी डबल मेम्ब्रेन ही होता है. सो उसी से ही ओरिजिनेट होके ये फोल्ड होते जाता है अपने आप में. तो देन कुछ तो डायरेक्टली सेपरेट भी हो जाते हैं, विच आर दिस. एंड फिर तुम्हें इसके ऊपर से कुछ ऐसे वेसिकल्स, मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स है विच ओरिजिनेट फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हम इन्हें कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो दे आर ऑलवेज फाउंड, रादर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर बोर्न फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इटसेल्फ. ठीक है. सो यू कैन सी दे आर सीवियरली फोल्डेड स्ट्रक्चर्स. हियर यू कैन सी दैट, एंड यू कैन सी ये ब्रांच भी एक दूसरे से कनेक्टेड है. सो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब दे हैव 3 पार्ट्स और 3 टाइप्स बोल सकते हो. नहीं टाइप्स नहीं, पार्ट्स बोलोगे तो बेटर है. दे आर नोन एज सिस्टर्नेस, दे आर नोन एज वेसिकल्स, उससे पहले ट्यूब्यूल्स, एंड लास्ट वन इज द वेसिकल्स. ठीक है. सिस्टर्नेस मतलब ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं तुम्हें, ये जो ब्रांच फोल्डेड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, they are known as cisterns. कुछ देखो सेपरेट है, there is no connection. ठीक है.
जो सेपरेट ऐसा ट्यूब जैसा सैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, हम उन्हें कहते हैं ट्यूब्यूल्स। एंड इनसे कुछ स्पेरिकल बॉडीज बनती है जो इनसे तैयार होती है, हम उन्हें कहते हैं वेसिकल्स। समझ में आया क्या? सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के देखो तो स्ट्रक्चरली दे एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। ये उसके 3 प्रोग्रेसिवली फॉर्म्स है। एक जिसे हम कहते हैं सिस्टर्नेस, मेनली व्हिच आर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स। हियर यू कैन सी दे आर प्रोफ्यूजली branched and highly folded ones. Tubules, they are sac like structure, double membrane sacs है जो सेपरेट है, देख सकते हो उन्हें कोई ब्रांचिंग नहीं है, और इनसे तैयार होते हैं ये वेसिकल्स, और यही आगे चल के फिर कोई स्पेरोसोम्स, कोई लाइसोसोम्स, ठीक है। सो ऐसे ये वेसिकल्स बनते हैं। सो दे गिव राइज टू दीज डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, ठीक है, लाइक लाइसोसोम्स वगैरह वगैरह। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होप सो समझाएं कैसे होता है। सो ये उसका ओरिजिन एंड उसका ये थोड़ा बहुत उसके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस मैंने बताया। नाउ विल सी द टाइप्स ऑफ इट। नाउ इसमें होता क्या है, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स एम्बेडेड होते हैं, राइबोसोम्स। सो सच टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ सिंस दे आर एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स, ऑब्वियसली इनका फंक्शन होगा प्रोटीन सिंथेसिस। तो सिंपल है, ये लोग प्रोटीन्स बनाएंगे राइबोसोम्स और ये उसे पैक करेंगे, ठीक है, ये उसको वेसिकल्स में वगैरह पैक करने का काम करते हैं। तो हम सिंस दे आर एसोसिएटेड विद दैट वी आल्सो कॉल देयर फंक्शन एज दे आल्सो डू द प्रोटीन सिंथेसिस। वेयर कुछ देख रहे हो जिनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, हम उन्हें कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, which are generally concerned with synthesis of lipids, which are generally concerned with synthesis of lipids। तो स्मूथ ER जो है वो synthesis of lipids है। इवन जैसे लिवर जैसे सेल्स में which are highly active cells, उनमें ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करते हैं। सो ये कुछ बेसिक फंक्शंस है ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ वाले प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेंगे, पैकेजिंग में भी मदद करेंगे, एंड स्मूथ वाले जो है वो लिपिड सिंथेसिस एंड पैकेजिंग में भी मदद करते हैं। सबको समझा है क्या? सो दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन क्या है? तो फंक्शन अगर देखोगे तो अगर ये सेल है सबसे पहला, और अगर ये न्यूक्लियस है, तो ऑब्वियसली दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे करते हैं, समटाइम्स दे माइट रीच अप टू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इतने सीवियर होते हैं, मतलब जो हाईली एक्टिव सेल्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह में, उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी डेवलप्ड होते हैं। सो दे आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स, दे रीच टुवर्ड्स द पेरिफेरी। सो ये क्या करते हैं, इंटरनल फ्रेमवर्क का काम करते हैं, सेल को एक शेप देने का काम करते हैं, दैट इज परफॉर्म्ड बाय देम फर्स्ट। दूसरा, रफ होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, स्मूथ होगा तो लिपिड सिंथेसिस करेगा। सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस, दैट इज फर्स्ट, it gives the structural, provides a structural framework to the cell. Second, it protein synthesis में and packaging में मदद करेगा, and lipid synthesis and packaging में भी वो help करता है। So these are the prime functions of this endoplasmic reticulum. So this topic and this topic is done. So next one जो है वो है Golgi bodies। अब ये थोड़े छोटे टॉपिक्स हैं, फटाफट ये हम कवर कर लेते हैं। नाउ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में है। नाउ सपोज करो ये सेल है, ठीक है, दिस इज सपोज द न्यूक्लियस, दीज आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो सबने देखा है कि जो गोल्गी बॉडीज होते हैं, तो गोल्गी बॉडीज भी जनरली तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे। इनमें भी तुम्हें फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, ठीक है, इनमें भी तुम्हें फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। इन्हें भी हम लोग कहते हैं सिस्टर्निस। तो कैमेलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही लगकर या पास में उसने ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व किए एंड उसने इसके ऊपर स्टडी किया और इसके बारे में बताया। सो उसका नाम दिया गया है। सो इसमें भी अगर तुम देखो, दीज आर फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे डबल मेम्ब्रेन भी देख लो, दीज आर 2 मेम्ब्रेन्स। सो वही मेम्ब्रेन एक्चुअली फोल्ड होके वो सैक बना है, ठीक है। सो ऐसे स्ट्रक्चर्स तुम्हें मिलते हैं एंड दे आर जस्ट फाउंड नियर द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसमें भी जो होता है
देख सकते हो कुछ है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सली ये जो कॉन्वेक्स साइड है इसको अपन बोलते हैं द सिस पार्ट, एंड ठीक है, एंड जो कॉनकेव पार्ट होता है, कॉनकेव पार्ट होता है दैट इज नोन एज द ट्रांस पार्ट, ठीक है, सिस पार्ट एंड द ट्रांस पार्ट। नाउ सिस पार्ट जो है वो इमैच्योर होता है, मतलब क्या होता है, सपोज करो ये राइबोसोम्स है, अब इन्होंने कुछ प्रोटीन्स अगर बनाए हैं तो यहां से वो प्रोटीन्स अंदर ले लेता है, ठीक है, वो क्या करेगा यहां से प्रोटीन्स अंदर ले लेगा एंड सब्सिक्वेंट इसमें पास करके जो उसका कॉनकेव सरफेस है वहां से इनको मैच्योर करके वेसिकल्स फॉर्मेट में बना के या तो वो उसे सेल के बाहर छोड़ सकता है या तो सेल के अंदर ही ये वेसिकल्स, और इन्हीं को हम लोग फिर लाइसोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब सपोज करो राइबोसोम्स ने कुछ एंजाइम्स बनाए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, तो ये तुरंत एंजाइम्स वो किसको ट्रांसफर कर देगा टू द सिस फेज ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वहां से ये एंटर करेगा उधर, ये जो सिस पार्ट है या जो सिस्टर्नेस है ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये उसको क्या बोल सकते हैं मॉड्यूलेट करते, इन प्रोटीन्स को मॉड्यूलेट करते हैं, फिर कुछ कुछ प्रोटीन्स वो ग्लाइकोप्रोटीन्स, कुछ कुछ लिपोप्रोटीन्स में भी कन्वर्ट होते हैं या कुछ प्योर प्रोटीन्स भी रहेंगे, बट उनमें मॉड्यूलेट करके उन्हें पैक किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, फिर या तो वो वेसिकल बना के सेल में ही रखेगा या तो वही वो बाहर यूज कर सकता है, इट कैन थ्रो इट आउटसाइड द सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर वर्क के लिए भी हो सकता है। जैसे फाइगोसाइटोसिस की अगर हम बात करें, कोई पैथोजेंस जैसे होता है, कोई बैक्टीरिया अगर अटैक करता है तो बैक्टीरिया भी तो उसका भी जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो भी तुम्हें पता है लिपोप्रोटीन से होता है, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं उसके सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड है प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करके उसको मारने का काम। सो फाइगोसाइटोसिस में भी ये मदद कर देते हैं या टू किल दोस पैथोजेंस। सो दे कैन बी यूज्ड एक्स्ट्रा सेलुलरली आल्सो ये वेसिकल्स, एंड दे कैन आल्सो बी यूज्ड इंट्रासेलुलर, कुछ कुछ प्रोटीन्स को पैक करके उनको ऐसे वेसिकल्स में भरा जाता है। सो पैकेजिंग का काम मेनली करता है ये गोल्गी बॉडीज, तो स्टोरेज, पैकेजिंग, मॉड्यूलेटिंग द प्रोटीन, ट्रांसफॉर्मिंग द प्रोटीन्स, ये सब काम गोल्गी बॉडीज करता है। एक और फेमस एमसीक्यू जो आता है खास करके इससे रिलेटेड एमसीक्यू के टर्म्स बता रहा हूं, जो स्पर्म होता है, जब हम स्पर्म ड्रॉ करते हैं तो स्पर्म का जो हेड होता है उसके ऊपर में एक्रोजोम होता है, एक्रोजोम नामक स्ट्रक्चर होता है। एंट्रेंस में बहुत बार क्वेश्चन आता है एक्रोजोम किसका मॉडिफिकेशन है, सो इट इज एक्चुअली द मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्गी बॉडीज, ठीक है, इट इज एक्चुअली द मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्गी बॉडीज जो स्पर्मालाइसिन हाइड्रोलाइडेज नामक एंजाइम्स बनाता है, ठीक है। सो ये एंट्रेंस के लिए याद रखो। एक और चीज, गोल्गी बॉडीज को ही प्लांट्स में डिक्टोजोम्स करके भी कहा जाता है, प्लांट्स में गोल्गी बॉडीज को ही डिक्टोजोम्स करके कहा जाता है। होप सो गोल्गी बॉडीज भी तुम्हें समझा है। खास करके एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से बोलो तो सिस ट्रांस फेज क्या करता है, सिस से एंट्री होती है, ट्रांस से एग्जिट की जाती है उसे इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, फिनिश्ड प्रोडक्ट ट्रांस फेज से निकाला जाता है। सो ये याद रखोगे। उसके सैटेलाइट स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नेस, याद रखोगे। फंक्शन इज पैकेजिंग, मॉड्यूलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ दोस वेसिकल्स एंड दैट इज लाइसोसोम्स। तो ये हमने देखा है, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज लाइसोसोम्स। वैक्यूल्स हम अगले सेशन में देख लेंगे। सो लाइसोसोम्स क्या, अभी मैंने बताया बनते कैसे। सो दीज आर वेसिकल्स which might be derived from endoplasmic reticulum or they might be derived from what you can say the Golgi bodies, but these are single membrane structures. These are single membrane structures. Generally they consist of 40 different types of hydrolytic enzymes जैसे lipase, protease, amylase. Obviously this will break down the carbohydrates, proteins and fats. So in this way ये लाइसोसोम्स काम आते हैं। देन लाइसोसोम्स को तुमने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी क्वेश्चन पढ़ा रहेगा, दे आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स मतलब क्या, उस फिनोमिनन को हम कहते हैं ऑटोफैजी, मतलब जब सेल खुद बूढ़ा हो जाए एंड जब सेल काम करने लायक ना हो, व्हेन ही वांट्स टू डाई, जिसे अपन प्रोग्राम डेथ बोलते हैं, मेडिकल के टर्म्स में उसे एपेप्टोसिस ऐसा बोलते हैं। सो वैसे वो तुम
11-12 के लिए थोड़ा हायर शब्द है, बट nevertheless whenever cell itself wants to die, which is a programmed cell death, तब ये लाइसोसोम्स वो खुद पे ही बर्स्ट करके एंड खुद ही सेल पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। या अगर कोई दूसरा मैक्रोफेजेस होते हैं वो अपने लाइसोसोम्स इस सेल पे डाल रहे तो इसे हेट्रोलिसिस बोलते हैं। तो फिर ऐसे वक्त में जब सेल डिस्ट्रॉय किया जा रहा है तो नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ जिसे अपन कहते हैं, सो इसलिए उसे हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स। होप सो। एंड जो लाइसोसोम्स है ये पहली बार डी डुवे साइंटिस्ट ने नोटिस किए थे इन एनिमल सेल, ऑफ कोर्स, बिकॉज प्लांट सेल्स डोंट हैव लाइसोसोम्स। सो होप सो सबको ये लेक्चर समझा है। सो सेल ऑर्गेनेलीज दैट इज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ये कुछ पार्ट्स थे। वैक्यूल्स पार्ट एक रह गया है, वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and hit the bell icon to get the further notifications. Bye.